Bismillahirrahmanirrahim. Ji, first of all, many thanks to all the captains and the affiliates to join us for this captains meeting for the third T20 Blast, the day edition. Or right now we are in Gulberg. It's takeaway for this event. To start off, I want you guys to have a look at our video teaser first. So thank you very much for so मेरे ख्याल से सब ने टीमों के नाम तो ऑलरेडी देख लिए होंगे जो खेल रहे हैं. So we are starting with 12 teams but this can go to 14 teams, right? क्योंकि अप्रूवल्स के कुछ डिलेज हैं कॉर्पोरेट्स के और उस वजह से सिचुएशन हमने जो टूर्नामेंट 5 को स्टार्ट करना था वी आर नाउ स्टार्टिंग एट 12. So let's start with the 12 confirmed teams. Moving forward, as you all know, कुछ कॉर्पोरेट के सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो सबको दिए हुए हैं. सो वी आर स्टिकिंग टू द सेम रूल्स. नॉमिनेशंस सब टीमों की ऑलरेडी आ चुकी हैं और जो प्लेयर लिस्ट में होता है वही ऐप में होता है वही खेल सकता है. फॉर एग्जांपल किसी को प्लेयर चेंज करना है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी. सो उस अप्रूवल में 1 हफ्ते का टाइम लगता है. तो इररिस्पेक्टिव अगर वो अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द डिस्ग्रेस ऑफ मैनेजमेंट. सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने जी पहले बता दिया था कि आप अपनी नॉमिनेशन दे दें. दिस टाइम वी हैव सम टीम्स विच आर प्लेइंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम. फ्रीजलैंड कंपीना इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम विद अस. वी हैव EGI is playing for the first time. Labisa has been playing with us, yes, for the first edition. Cure MD is playing with us for the first time. Zameen has been playing with us for many years and they have been champions with us. So Pepsi is the current champion of the day edition T20 Blast. Asim bhai is carrying the current trophy of that tournament, and it was an amazing tournament where we had 9 corporate teams and every team was playing against each other. So they had 8 matches and in the end it was a qualifier, proper playoff style जिसमें eliminator was between AGR and Pepsi and the qualifier was between Mizan and Fatima. And at last it was not the qualifier winning the trophy, it was the team from eliminator winning the trophy and it was Pepsi. So it was a very exciting tournament and one of the I think longest tournament था कि जो कि हमारे ख्याल से 2.5-3 महीने चला था. So उस फॉर्मेट का मज़ा बहुत आया था क्योंकि हर टीम को दूसरी टीम से खेलने का मौका मिला और मेरे ख्याल से ऐसा भी हुआ कि आपको इनफैक्ट फातिमा को 2 टीमों से 2 दफ़ा मैच मिला हैं
irrespective, but so that was one of a kind tournament जहाँ पे Inisia and Nespak, they also played against each other twice, right? And same goes with Nespak and DPS twice, and Nespak won the plate. Anyways, we are kicking off this tournament. We are kicking off this tournament this weekend, and alhamdulillah for the last 10 years, अब मैं तस्वीरें देखता हूँ, पुरानी शेयर भी करता हूँ, so पुराने लोग हैं बट बाल अब सफ़ेद हो रहे हैं, बॉडी फिटनेस थोड़ी डिफरेंट हो गई है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एंगेजमेंट. वी alhamdulillah we are, for us it's like a networking and an association which is known as the family of corporate cricket. So it's all about engaging with each other. So ये हार जीत तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक रिलेशनशिप जो हम कैरी करते हैं, एंड वी ट्राई टू टेक इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसा ताल्लुक़ है कि हमारी फैमिलीज़ भी एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है और बच्चों की भी इंटरेक्शन होती है. सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आप इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. और नाउ एज अजान जॉइंड मी and mashallah within last 6-7 months you are seeing the 100 league, that is also a baby of Crickley, then the CBL baby of Crickley, and Crickley itself जो ऐप है जिसके अंदर सारी वेरिएशंस आ रही हैं, सारी डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट्स के आपको फॉर्मेट्स मिल रहे हैं. सो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एफर्ट बाय Crickley एंड अजान एंड हिज टीम. So we will go for the polling, but उससे पहले I would like to know कि जी कोई ऐसे सवालात किसी टीम को, कोई कंसर्न्स, कोई चीज़, क्योंकि होता ही है कि कंसर्न्स बाद में आते हैं तो वो उस पर अटेंशन नहीं मिलती. Okay, so the format is 12 teams, 6 teams in pool A, 6 teams in pool B, but proper 6 teams will be like, उनकी फॉर्मेटिंग होगी, स्ट्रक्चरिंग होगी, एंड पूल ए विल प्ले पूल बी टीम्स, पूल बी विल प्ले पूल ए टीम्स. सो जो होगा कि एक ही ग्राफ बनेगा, 12 टीमें होंगी, उनकी रेटिंग आ रही होगी, जो टॉप 8 होंगी दे विल गो फॉर द क्वार्टर फाइनल्स. सो फ्रॉम 12 वी विल हैव 8 टीम्स, so that means we are giving 85% teams 7 confirmed matches. Match timings 9:15 toss, 9:30 start first match. Second match 1:30 बजे toss, 1:45 start. सवा एक बजे टॉस, 1:30 बजे स्टार्ट. ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब वो मगरिब जो है वो जल्दी हो जाती है, तो वो फिर दूसरी टीम को जो है ना प्रॉब्लम आती हैं. वेन्यूज़ वी हैव मॉडल टाउन ग्रीन्स, वी हैव अलीगढ़, वी हैव मॉडल टाउन वाइट्स, वेलेंशिया, इंजीनियर्स टाउन, जुबली टाउन, and many more. So this has been a great effort by Crickley that we are because of addition of these leagues, so we are able to get more grounds. क्योंकि if you specify yourself only to the corporate cricket, then in this market it's not easy to get the complete season of grounds. ठीक है. So yes, अब जो वेलेंशिया में रहते हैं, वी ऑल्सो है वेलेंशिया टाउन बाय द वे, सो उनको कुछ ग्राउंड वहाँ भी मिल जाएंगी. मॉल टाउन में तो वैसे ही हम क्रिकेट कराते रहें, बट येस इंजीनियर्स टाउन की जो ग्राउंड बनी है, इट इज़ अमेजिंग ग्राउंड, जस्ट लाइक जुबली टाउन की जो ग्राउंड है. सो इंशाल्लाह वी विल हैव गुड क्रिकेट. एम्पायरिंग पैनल हमारा वही है कॉर्पोरेट में, जमील, फरहान एंड मे बी कुछ सम न्यू फेसेस, बट द स्टैंडर्ड विल बी द सेम, इट विल नॉट गो डाउन. ठीक है. उसके अलावा कोई और कंसर्न, कोई ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहते हो, दिस इज़ द टाइम, क्योंकि सारे बैठे हुए हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जो
किसी को रूल्स तो आप शेयर करते हैं। जी जी ये जो प्लेयर्स के बारे में होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में ना, ये सब कुछ होता है मेरे ख्याल से कंसर्न इसमें कोई इस तरह का वो रखा हुआ है कि कोई बाहर से इस तरह क्लब के लड़के खेल जाते हैं या कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता तो उसको खिला दिया जाता है, उसके लिए क्या? अच्छा जी, वेरी गुड क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल एक किसी टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर है जो उनका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, और सामने वाली टीम प्रोटेस्ट कर लेती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, तो अगर वो प्लेयर पकड़ा जाता है तो पॉइंट ए के वो पॉइंट्स जो है ना जिस मैच में वो खेला होता है, इररिस्पेक्टिव वो मैच आप जीते हैं हारे हैं, वो पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाते हैं, और इररिस्पेक्टिव के प्रोटेस्ट करने वाली टीम को नहीं मिलते सिर्फ पॉइंट जितने भी मैचेस में वो खेला होता है, ठीक है। एम्प्लॉय की आपने सवाल था आपका कि अगर एम्प्लॉय ना हो, दो चीज़ें, कोई भी प्लेयर जो वीकडे में क्रिकेट खेल रहा है दैट इज़ नॉट अलाउड इन दिस कॉर्पोरेट क्रिकेट, ठीक है, यानी कि अगर वो रात को खेल रहा है दैट इज़ ओके, वो वीकडे में नहीं आएगा क्योंकि वो ऑफिस टाइम के बाद खेल रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे सही है, इज़ कंसिडर्ड वीकेंड, so any player who is playing cricket in these days plus above 40, anybody above 40 even playing cricket on weekday can play corporate cricket, ठीक है, but any player who is less than 40 even one day less cannot play on weekdays, ठीक है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं क्लब प्लेयर की, क्लब प्लेयर if he is an employee of that company for the past 1 year he can play, but if he is not employee of that company तो वो तो वैसे ही प्रोटेस्ट हो जाएगा। पीसीबी वाला क्राइटेरिया वो मैं उस पर आता हूँ, पीसीबी वाला क्राइटेरिया और सारी चीज़ें आसान बताएंगे, बट क्लब प्लेयर जो है ना उसको हम पीसीबी के क्राइटेरिया में नहीं लेके आते, ठीक है, वो अगर एम्प्लॉई है और दूसरा वीकडे में नहीं खेल रहा हो, सही। एनी अदर क्वेश्चन? मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे इज कंसिडर्ड एज वीकेंड। 40 साल का ऊपर जो है वो पूरा हफ्ता क्रिकेट खेलता रहे, उसकी अगर कंपनी उसको मुफ्त के पैसे दे रही है तो कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज अब 40 इज नो प्रॉब्लम, वो तो ठीक है, हाँ वो खेल सकते हैं। हम तो एक और रूल डाले थे, हम तो एज क्राइटेरिया सेट कर थे कि यार अब 40 कर दो 4 बंदे, अब 30 कर दो 4 बंदे, तो उस पर बहुत सी टीमों को एतराज़ हो रहे थे कि यार इतने बुढ़े बाबे नहीं हमारे पास इतनी जल्दी, तो बट अगेन दिस ऑल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट अस यार, वी डोंट वांट किड, हाँ दिस वी डोंट वांट पीपल के यार जस्ट फॉर विनिंग दे पुट द यंग लेग्स इनटू द टीम, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। सो इफ एनी टीम is playing this tournament to win this tournament only, if that is their intention, then this is not the place, सही है, we are here to enjoy a good time with each other, ठीक है। और मुझे खुशी होगी कि अजान मैन ऑफ द मैच हो, ठीक है, मुझे खुशी होगी कि जी तलाल हो शान हो, बट अगर कोई 20-22 साल की उम्र का बच्चा आगे 5 विकेटें ले जाए या वो 100 रन कर दे और उसके 100 रन में जो हैं वो 60-70 तो सिंगले हों, तो सो फिर हमारा कोई उससे मुकाबला नहीं है। इस प्रोसेस में प्लेयर बड़ा अच्छा खेल रहा है, बड़ा प्रोफेशनल है, हो सकता है वो कॉर्पोरेट का पार्ट हो, बट अंपायर्स को जरूर असेस करना चाहिए और दे कैन आइडेंटिफाई कि किसी ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, दे कैन करेक्ट इसको चेक कर लें कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार ये कॉर्पोरेट की लोग इसके जरिए कॉर्पोरेट वाला टैक्स नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है वेटरन्स खेलें पे खेलने आप कह रहे हैं लाओ, बट हमारे पार्टी अगर कोई ऐसी कंपनी मौजूद है कि माशाल्लाह जो तनख्वाह भी दे रही है और वो नौकरी नहीं कर रहा बंदा, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो पैसे तो देती है। दिस इज़ नॉट एथिकल वे कि एक बंदा आसिफ भाई, वो मैंने तंजन कहा था जॉब रखा हुआ है वो मैंने और वो जॉब नहीं कर रहा, उसको वो बंदा
मतलब either it's a corporate, either it's a private, either it's a जो भी public company है, लेकिन वो हाँ लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है दिन में नौकरी नहीं कर रहा, हाँ। भाई वो क्यों रखा है भाई? तो मैं तो तंजन कह रहा था कि अगर ऐसी आइडियल जॉब मिल जाती है। एथिकली ठीक नहीं है, मतलब टॉप अबाउट किया कॉर्पोरेट के लोग हैं तो वही नौकरी वाले लोग हैं। मेरा पॉइंट आसिम भाई वो ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि 40 साल से ऊपर जो है ना वो वीकडे में खेल सकता है। अब वो वीकडे में रोज़ तो नहीं खेलेगा, काम पे तो जाना ही है ना उसने। डिपेंड करता है ना, उसको रखते ही इस काम के लिए तो ये तो काम उसको काम पे हाँ अलग। काम भी आया हुआ है। मैं कहता हूँ आसिम भाई हमारी जो क्रिकेट का हाल हुआ हुआ है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई हुई है और ये सारी चीज़ें तो कहाँ हैं, मतलब ये तो इस वक्त सिचुएशन ही अजीब हुई हुई है। बट मेरा पॉइंट सिर्फ तंजन था कि अब 40 जो है अगर वो वीकडे में खेल गया है तो उसके ऊपर एतराज़ नहीं है, सही है। हाँ ये मैं तो बात करूं कि सारी टीम्स के हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि जी वो रोज़ ही खेल रहा है और महीने में जी वो 20 दिन तो वीकडे में क्रिकेट खेल रहा है। मेरा नहीं ख्याल किसी यहाँ पे लोगों के लिए 60-70 लाख में किसी बंदे को देना मुश्किल है, वो नहीं और उसको खेलना सिर्फ बैठकर क्रिकेट खेल तो क्रिकेट का आगे मैच रहेगी, वो हमारा मुलाजिम है, ये किए लोगों ने। तो उसके ऊपर मेरा सरों को ये मैसेज है कि वो अलाउड ही नहीं है आसिम भाई। हाँ मतलब कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि 5 दिन या नौकरी करें, 6 दिन रिलैक्स होने के लिए आए अपनी कंपनी के लोगों को बुलाएं ताकि आप इंजॉय करें, ज़्यादा देर कोई जंग नहीं है ये। डन हो गया आसिम भाई। मुझे आप अगर कुछ पॉइंट अगर नाम हाईलाइट कर दें कैसा हो, क्योंकि मैं तो एक तंजन बात की है। हाँ बट मैं आपको मैंने सर एम्पायर्स की बात करते हैं हर टूर्नामेंट में, हम एम्पायर से पूछते हैं यार तुमसे ज़्यादा किसी और को नहीं पता चलता, ठीक है। सो दे डू आइडेंटिफाई अस। फॉर एग्जांपल एक टीम थी अभी बाहर से आई थी, नाम नहीं लूँगा। सो उसके एम्पायर्स ने 3 बंदों के नाम दे दिए थे, हमने उनकी वेरिफिकेशन की सारा कुछ किया। एट दी एंड निकला क्या कि वो सिर्फ क्लब क्रिकेट खेले, उसके ऊपर कुछ नहीं खेले, बट एम्पायरों ने हमारी सपोर्ट की, हमें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और अब सारा डेटा जो है ना वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है, जो पीसीबी का डेटा है, लेकिन वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ग्रेड 1 ग्रेड 2 अंडर 19 अंडर 16 जो पीसीबी कराती है, जो क्लब क्रिकेट है ना वो पीसीबी नहीं कराती, तो इसलिए उसको हम उससे एसोशिएट नहीं करते हैं। दूसरा ना मेरा पॉइंट है आपके आई थिंक एक स्टेट टूर्नामेंट में शुरुआ, स्टेट टूर्नामेंट में भी काफ़ी शुरुआ इवन लड़ाई तक मामला चला गया, लड़की टॉप लड़की, तो उसके ऊपर आप बैंकेट के क्लॉज के ऊपर एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको रिपीट कर लें। एटलीस्ट अगर इस तरह अगर किसी टीम ने एक्टिविटी करनी है या किसी टीम ने ये वाले आउट पे जाना है तो वार्निंग वाला मामला हो, वार्न करे एक दफ़ा अंपायर को बताए या उसको रनर है जो उसके साइड पे है, फ्रंट के ऊपर है, नॉन स्ट्राइकर पे है, उसको वार्न करे। एटलीस्ट एक वार्निंग होनी चाहिए। कॉर्पोरेट है, समहाउ लोग जो है वो इतने प्रोफेशनल में इतने अवेयर नहीं होते तो यार पता चले कि यार अच्छा ये एक दफ़ा इस तरह से भी मैंडेट हो जाएगा। मैं आपको देखो लास्ट टाइम मैं नहीं कर रहा था 30 से बाहर के बॉलर ने आज फॉर्म दिखाया भाई मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं तो मतलब दोबारा क्रिकेट खेलने वाला थोड़ी अरे अच्छा हाँ यार ये मैच अब मैं तो ही फॉर्मली फॉर्म अंपायर को बताया तो कर सकता था मुझे इसी तरह ही मैंडेट आउट। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बाकियों से देने आप तो एक फॉर्मल ऑफिशियल वार्निंग प्लेयर को और अंपायर को नोटिस दे बताएं, देन उसके बाद अगर प्लेयर बात नहीं आ रहा देन फिर वो कर लें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सब ओके इस दफा इस इशू के ऊपर अच्छी खासी चलें इस पॉइंट को हम एंड में एक इसके ले आते हैं। इसके अलावा कोई और वो भी मैं आसिफ की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जो प्लेयर्स क्राइटेरिया है ना उसमें आप लोगों को खुद भी चाहिए तो बायर्स कर दें और आपको खुद भी चाहिए कि आप जैसे टीम्स की नॉमिनेशन जाती है, कुछ नाम आप लोगों को पता है कि पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, कोई नया नाम हो उसको आप लोग खुद भी रखते हैं, मतलब कि ये टीम्स में ना छोड़ेंगे तो टीम बहुत अच्छा लड़का प्लेयर खेल रहा है तो वो आप उस टाइम पे ग्राउंड पे देख रहे होंगे ये लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट को करके इसको हम देखें, हमें पहले खुद भी वेरीफाई कर लेना चाहिए। है कि आप लोगों को भी प्रिपेयर शानी हमारा क्राइटेरिया है, कोई भी नया नाम आता है फॉर एग्जांपल एक नई टीम है ना उसके तो सारे प्लेयर्स का फिल्टर आउट होती है क्योंकि वो हमारे साथ पहली दफ़ा खेल रही, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग टीम है उसमें भी नए नाम आते हैं, उसकी पुरानी नॉमिनेशन में नहीं है 3 चीज़ें चेक होती हैं। कंपनी से हम उसकी 6 महीने की लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, 6 महीने के अलावा हम साल की भी मांग सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़
उसके बाद हम उसका पूरा रिकॉर्ड देखते हैं कि भाई वो कोई ग्रेड 1 ग्रेड 2 की क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में कहीं से तो नहीं खेल गया। अच्छा फिर अगर तब भी उसके अलावा हम उससे ये मांग लेते हैं कि भाई पिछला अपना शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड सारा निकाल के इसकी रिहाइश कहाँ कहाँ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। सो ये तो हम अपने एंड पे काम सारा करते ही करते हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि कभी कभार हमसे भी रह जाता है, सही है। लेकिन एक टूर्नामेंट था जिसमें एक टीम ने ड्रामा किया कि उन प्लेयर्स को नीचे रख दिया लीग मैचेस में और पता ही नहीं लगने दिया, ठीक है। वो लीग मैचेस में किसी टीम ने प्रोटेस्ट ही नहीं किया। अब वो जैसी क्वार्टर फाइनल में आई है, नहीं क्वार्टर फाइनल में आई है और क्वार्टर फाइनल में 180-85 का टारगेट चेस करना था, तो वो जो नीचे प्लेयर्स आ रहे थे वो उनको उन्होंने ऊपर कर दिया और जी उसके बाद वो टीम के टेम्पो ही चेंज हो गया सारा कुछ। और जी क्वार्टर फाइनल में जी वो जाके पकड़ी गई वो टीम क्वार्टर फाइनल, वो सेमीफाइनल भी खेल गई, फाइनल भी खेल गई, लेकिन उसके बाद वो ट्रॉफी भी उनसे वापस ली गई, उनको लाइफ टाइम बैन भी किया, ठीक है। पॉइंट क्या है कि कभी कभार ऐसी टीमें होती हैं वो इस तरह की हरकतें कर लेती हैं। फिर जब उन पर चेक किया तो पता चला उनके 7 एम्प्लॉइज़ थे और वो थे कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा उनके कैप्टन ने करा लिया कि यार 11 महीने का भी अगर पुराना कॉन्ट्रैक्चुअल है तो उसको अलाउ कर दें, तो कैप्टन ने अलाउ कर दिया कैप्टन मीटिंग में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकाले गए तो सारों के सारे जो HR ने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए थे वो इतवार के दिन बनाए हुए थे। तो पॉइंट ये कि वो है कॉर्पोरेट की टीम, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है आप एकदम से किसी के ऊपर वो नहीं कर सकते ना, वो इतने अरसे से खेल रही है टीम। लेकिन ये मैंने वही कहा कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, एक दूसरे को चीट करने का क्या फ़ायदा है, सही है। यहाँ पे अगर किसी की इंटेंशन जीतने की है तो यार वो खुद जीत के दिखाए। अगर वो एक रूल सेट से हट के लेके आ रहा है चीज़, हम उसको पकड़ेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले खुद कहेंगे कि यार तुम देख लो कि मतलब इस फैमिली का हिस्सा तुमने रहना है कि नहीं रहना। तो वो ज़्यादा अरसे टिकती नहीं है चीज़। बट ये है कि माशाल्लाह पुरानी टीमें ही ज़्यादातर होती हैं, नई टीमें नहीं सेटल हो पाती है, बहुत कम ही है। मेरे ख्याल से इरिसिया लैब्स को कितना अरसा हुआ है, 3 साल हुए हैं इससे, और लबीसा भी माशाल्लाह से 4-5 साल से खेल रही, और आपकी टीम को भी 5-6 साल तो हो गए हैं ना। MCB जो है वो मेरे ख्याल से पिछले 10-11 साल से खेल रही है, लेकिन बीच में कभी खेलती है कभी नहीं खेलती। सो टीमें सारी पुरानी हैं। जोंग जो है वो भी मेरे ख्याल से कोविड से पहले से खेल रही है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? आपका जो एक क्वेश्चन है वो मैं उसको बिल्कुल एंड में हम करेंगे डिस्कस। एनी अदर क्वेश्चन? ये आ रहा है ना मेरे सवाल का ओके। तो उस पर सामने ये कहा था कि हम नेक्स्ट जो है उसमें रिव्यू का कुछ करेंगे, जो लाइव स्ट्रीमिंग मैच होगी उसमें हम रिव्यू का कुछ। मैं आपको इस पर भी आंसर करता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, मैंने कहा उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। जहाँ पे उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलने की बात किया है वो बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है। लॉट ऑफ पीपल जो इधर बैठे होंगे वो कभी ना कभी किसी क्लब से रजिस्टर्ड हुए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जब यंग एज में होते हैं तो हर एक का एम्बिशन होता है कि जी हम पाकिस्तान खेल जाएं, हर बंदा नहीं खेल पाता। तो वो मकसद ये था कि बहुत सारी जगहों पर टूर्नामेंट नहीं हो रहा, और अगर कोई बंदा क्लब से रजिस्टर्ड है और अगर कभी वो वन ऑफ मैच खेल भी आता है क्लब की तरफ से, क्योंकि उनके वोट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं और शायद मैनेजमेंट को या टीम को, कैप्टन को नहीं पता होता, तो दैट इज़ समथिंग कि जो इतना बड़ा एक इशू नहीं है। बट क्लब क्रिकेट मतलब एज एन अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो 5 दिन, जॉब नहीं कर रहे हो, और वो अगर आ जाता है तो दैट वुड स्टे इन द सेम रूल्स और उसमें कोई किसी के लिए गुंजाइश नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ आपने बताई कि नए प्लेयर्स आते हैं, जो भी है बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने CBL शुरू किया विच इज़ अ सेमी कॉर्पोरेट, और उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ, ज़मीन खेलना चाह रही है, बट ज़मीन के कुछ ज़ुहैब नबी के, सलमान के कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी खेलना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस तलाल कहता है यार मैंने भी खेलना है, मेरे पास टीम नहीं है। तो CBL में यू कैन हैव दोज फ्रेंड्स। वो आप उसको सेमी कॉर्पोरेट इसलिए कि वो एक जगह से नहीं है, मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे और अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो दे कैन पार्टिसिपेट। बट व्हेन इट कम्स टू द रूल्स जो हमने कॉर्पोरेट के लिए डिफाइन किए हैं, वही रूल्स वहाँ पर हैं। एंड अभी सिर्फ 2 वीक्स में उस लीग को स्टार्ट हुए, एंड वी हैव सीन कि टीम अनाउंस करने से पहले एक डिस्कशन में
एक प्लेयर ने बताया कि आई रिसेंटली प्लेड डिस्ट्रिक्ट, तो द कैप्टन हिमसेल्फ, बिकॉज ही न्यू, और वो सबूर भाई ने हाईलाइट भी किया था कि यार इस टीम को देखना, एंड आई हैव विटनेस्ड इट कि कैप्टन को उसने बताया तो उसने उसको बिठा दिया एंड सेंट हिम बैक कि भाई जो रूल्स हैं विल रिमेन विद इन द रूल्स। तो वो ऑब्वियसली वो किसी किस्म की भी क्रिकेट हो, वो हम 100 कराएं, कॉर्पोरेट कराएं, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि यार आप एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड करें, एक रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करें, और ये सिर्फ हार जीत पर ना रहे। एक तो ये चीज़ है, and this is one reason very happy to have Zameen playing our tournament, EGA playing our tournament, Friesland playing our tournament for the first time, Labisa. तो point is कि this is what we want to build as a culture कि यार it's मतलब अगर for instance आपका कभी argument भी हुआ तो that doesn't mean कि it will stay till end of times, तो you have to move on। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ जो क्या कहते हैं, आसिम भाई ने मैन केड की बात की, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी और बहुत सारी चीज़ हुई थी, बट पॉइंट ये है कि इट्स एक्चुअली आप जाके अगर पीसीबी की वेबसाइट पे देखें तो मैन केड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हुआ है, इट्स अ रन आउट, ठीक है। और ये बहुत लंबी डिबेट है, और उन्होंने इसको मैन केड जो नाम दिया था जो पहली दफ़ा हुआ था, इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे हैव रिमूव्ड इट एंड दे हैव कंसीडर्ड इट एज अ रन आउट, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, बड़ी सिंपल सी एक बात है कि हम एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक बंदा फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं कि वार्निंग दें, एक बंदा बॉल शुरू होने से पहले आधी क्रीज में जाके खड़ा हो जाए, तो हाउ कन्वीनियंट फॉर हिम कि वो तो सिंगल ले लेगा। उसी मैच में जिसमें ये हुआ, उस मैच में उससे पहले ही 2-4 बॉलों में द बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइक करता है उसने बैट लगाया है, अभी बॉल फील्डर के हाथ में भी नहीं गई है, एंड ही लेफ्ट हिज क्रीज और वो दूसरी साइड पे चला गया है, और द अंपायर वाज मूविंग बैक और ही वाज लुकिंग एट कि क्या हो रहा है, वो बॉल फेंकी है और हमने ऑब्वियसली बेल्स उड़ा दी, एंड वी अपील्ड एंड अंपायर गेव हिम आउट, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि भाई अभी तो बॉल कैरी भी नहीं हुआ फील्डर से और तुमने खुद से ज्यूम कर लिया कि यार ये आई हैव टेकन अ रन। तो वो वहाँ पर जो इस तरह के इंसिडेंट है ना, इट्स नॉट एट ऑल पर्सनल। वो चीज़ ये होती है कि आपको गेम अवेयरनेस ही नहीं है, आप 12 स्कोर आपको नज़र आ रहा है कि चेस करना है, 6 विकेट एंड यू हैव लॉस्ट इट। आई स्टिल रिमेंबर हम फ्रीजलैंड से मैच हारे थे और वी वर 3 शॉट और हमें 10 या 11 स्कोर चाहिए होंगे, ग्रीन एकर्स में मैच हो रहा था, एंड वी लॉस्ट 7 विकेट्स एंड 80% उसमें रन आउट्स थे। क्या था, अवेयरनेस नहीं थी, मारते थे बस, होता था कि यार 6-7 स्कोर ही है ना, एंड वी लॉस्ट इट। इवन इमरान खटक साहब को पता है कितनी दफ़ा हम इस तरह के जीते हुए मैच हारे हैं, एंड ही यूज्ड टू कम यार हैव सम पेशेंस। तो पॉइंट इज़ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें वी डोंट वांट टू प्रमोट इट। वी हैव बीन वन ऑफ द टीम्स कि जिसके साथ मैनकेड हुआ था वो शाम के, और ही वॉज क्राइंग कि ये क्या कर दिया है, ये क्या हो गया है। तो पॉइंट इज़ कि समथिंग इज़ विद इन द रूल्स, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ये चेंज करोगे तो यस आपको फिर कुछ रूल्स रीडिफाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज मैनकेड इटसेल्फ एक टर्म ही ख़त्म कर दिया ना उन्होंने, उसको रन आउट कर दिया। इसके अलावा जो आप नई स्क्रीनिंग की बात कर रहे हो यार, जो हमारे पास नई टीम्स आती हैं, नए प्लेयर्स आते हैं, वी मेक श्योर हम देखते हैं। और इवन के इस्लामाबाद की टीम है, हमने एक एक प्लेयर का एक एक डाटा, एक एक चीज़ निकाल के देखी है, ठीक है। और पॉइंट ये है कि वो एथलीट्स अच्छे हैं यार, ठीक है, और वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, वो हर नाइट पे जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, उनका वो शायद ब्रीड फ़र्क है हम लोगों से, तो वो एक डिफरेंट जुनून होगा तो वो इधर आ रहे हैं ना। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि यार पठान है शायद में भी, तो हमें कोई ऐसा एविडेंट कुछ नज़र ही नहीं आया, कुछ ऐसी चीज़ मिली नहीं कि जिस पे हम हाईलाइट करें ये चीज़। हाँ, हो सकता है कि उनके मिशन हो, कल को वो कोई अच्छा प्लेयर है तो मैं पाकिस्तान को किसी लेवल पर रिप्रेजेंट कर दूँ, बट व्हेन इट हैपन्स इट विल ऑब्वियसली कम, बट उससे पहले वी कैन नॉट डू एनीथिंग। खैर, हैविंग सेड दैट, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूँ कि हमारी पूरी कोशिश जो है वो ये है कि एक अच्छा हेल्दी कल्चर बिल्ड हो और एक अच्छा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर बिल्ड हो। अंपायर्स की जो आपने बात की है उसमें मेरे ख्याल से माय पर्सनल ओपिनियन, आई हैव मतलब पीसीएल मैंने 5-6 सीज़न लगातार खेले हैं, यहाँ पे भी कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत सारे लोगों से, तो मेरी पर्सनल थॉट है कि फरहान एंड जमील आर वन ऑफ द फाइनेस्ट वंस, बट येस मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, ह्यूमन एरर भी होता है और सब कुछ होता है। उसके लिए हमने जो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वो ये है कि हम जो CBL करवा रहे हैं उसका एम्पायरिंग पैनल और जो हमारा कॉर्पोरेट है उसका हम ऑलमोस्ट सेम रख रहे हैं, और उसमें ऑटोमेटिकली यू विल सी कि एट टाइम्स देयर वुड बी अ डिफरेंट एम्पायर इन कॉर्पोरेट, और बड़े अच्छे अच्छे एम्पायर हमने एम्पायरिंग ऑब्वियसली ऑनबोर्ड किए, ऐसे ऐसे एम्पायर जो कि
शायद नए नए चेहरे होंगे, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे, बट वो हमने पैनल ही पूरा नया बनाया नदीम गोंदल साहब के साथ मिलके, और उसमें बहुत सारे हमने आइडेंटिफाई किया कि बहुत फाइनेस्ट अंपायर्स हैं, इवन कि वो आपको फील आती है, आप जब देखेंगे तो यू विल सी। तो वी प्लान कि हम उनको चेंज करके, वी डोंट वांट कि यार किसी की जॉब जाए, बट आर सिंपल गोल इज़ कि यार जितने ज़्यादा लोग इसमें ऑब्वियसली हम उनको एडअप कर सके, टीम बिल्ड हो सके और लोगों का रोज़गार भी चले और एक अच्छी से अच्छी क्रिकेट भी दी जाए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वी आर वर्किंग, और इंशाल्लाह यू विल सी डिफरेंट फेसेस ऑन डिफरेंट डेज, और इंशाल्लाह वी उम्मीद है कि अच्छा टूर्नामेंट होगा। एनीथिंग दैट आई माइट हैव मिस्ड और उसको हाईलाइट जी जी यस उसमें 2-3 चीज़ें हैं यार, मैं बता देता हूँ। एक तो किट्स का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और वो ये प्रॉब्लम है कि अभी भी सब टीमों की नॉमिनेशंस नहीं आई हमारे पास और उसकी वजह से अब हम ऑलरेडी वी वांटेड कि हम 28 सितंबर से टूर्नामेंट स्टार्ट करें, बट वी कुडेंट, क्योंकि तब तक ऑब्वियसली कुछ टीम्स के अप्रूवल्स का वेट था, कुछ और इश्यूज़ थे, और 5 अक्टूबर हम करना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया बिकॉज 4 से 5 टीमों की नॉमिनेशंस आई हुई थी। तो वी हैव बीन इनटू अ सिचुएशन, अब वो बट पॉइंट जो है ना वो ये है कि हमारी कोशिश ये होगी कि यार मैच डे पर किट्स ना दी जाएं, उससे पहले ही प्रोवाइड की जाएं, क्योंकि असल डिले जो आता है ना वो ये आता है कि सुबह सुबह किट भी पहुंचाओ, बाकी चीज़ें भी, तो उसमें एट टाइम्स वो जो डिले मार्ज आ रहा है ना, जो गैप, वो दैट हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस किट। जैसे 8:30 हमने जी 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 मैं बता देता हूँ। 8:30 हमने टाइम दिया हुआ है। नहीं दिन छोटे हो गए हैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। हमने जो बेसिकली टाइम रखा हुआ है ना टीम्स के लिए, वो 8:30 टाइम देते हैं और 8:45 से 9 के दरमियान कैप्टन्स आएँ और टॉस होगा। हमारी कोशिश ये है कि 9 से 9:15 तक बॉल डिलीवर करें। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि आगे दिन छोटे होते जाएंगे। जो सेकंड मैच है वो आपका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पर। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग ऑब्वियसली। अब क्योंकि आगे दिन छोटे होते जाने हैं और हमने इवन के सबूर भाई हैव प्लेड जी दिल्ली सफ़र करता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने माशाल्लाह मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, नाइट का भी और इससे पहले दिन का भी। सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी तरफ से मैनेजमेंट की हो रही है वो है कि वो टाइमिंग, हाँ इसमें आपका क्यों नहीं, ये जो सारी टीम बैठी हुई है आप लोगों का कैसे, अगर आप खेलने आए तो 9 बजे क्या 9:30 बजे क्या सर टाइम से हम उस पर पहुँचे ताकि टाइम स्टार्ट मैच जरा टाइम पर स्टार्ट, इसके लिए थोड़ा बिल्कुल इस पे बड़ी सिंपल सी चीज़ है। लास्ट टाइम भी इम्प्लीमेंट किया था, इवन के व्हेन आई वाज प्लेइंग PCL उसमें भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई थी कि यार 9 बजे तक आपका वेट है, अगर टॉस नहीं होगा तो टॉस सिंपल अवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसमें देयर शुडंट बी एनी आर्गूमेंट। कोई पिछले 8-9 साल के बाद हमारा ये पहले भी हम यही करते थे, जल्दी करते ग्राउंड रेडी नहीं होता था। पहले मैच में टॉस का बड़ा एडवांटेज हो जाता है, वो हम नहीं दे सकते। हाँ मैं आई थिंक इट्स अ जस्ट टू बी क्लियर, 9 बजे तक अगर टीम नहीं आती, एक टीम के 6, 7, 8 प्लेयर्स ग्राउंड में है, तो मैंने बात की टॉस अवॉर्ड की। देखिए मैच तो 9:15 से 9:30 के दरमियान में ही होना है, द अर्लीस्ट वीकेंड, बट टॉस उसको अवॉर्ड हो जाएगा। पता होगा कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है। टाइम दे के उसको मतलब एक स्टेटमेंट ना देना कि 8:30
अंपायर ने कह दिया मैं ठीक करे, बहस मत कीजिए। अगर रूल क्लियर कर देते ताकि पता हो जाए समझ लो ठीक है। वो टीम की कॉल है 8:30 बजे 9 बजे 7 बजे आ जाए उनका मसला है। फातिमा के सारे ट्राउजर बहुत है। फातिमा टाइप जाती है। हां फातिमा टाइप जाती है। अभी तो सुन ही नहीं रहा। ये रे तो से बोर्ड हो जाएगी फातिमा में वो टाइम है। रिवॉर्ड करके खेलते हैं। वो ये नया टेंशन भी नहीं रहते कि मैच जीत गए वो हैं। कहते हैं मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ इसी टाइम से रिलेटेड कि जब हम लेट हो जाते हैं ना तो यूजली जो बाय लॉ की के रूल के हिसाब से भी ओवर रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों टीम से कट जाते हैं। तो हमारी सजेशन होगी कि वो सारे मैचेस जिसमें टाइम आपका शॉर्ट हो गया फॉर एनी रीज़न, बारिश की वजह से लेट की ग्राउंड लेट मिला जो भी है, तो जो एक बड़ा अच्छा हमने एक चीज़ देखी कि 10 ओवर्स एक साइड से करते हैं, 10 एक साइड से करते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। इंस्टेड ऑफ कटिंग ऑफ आवर ओवर्स आप इस पे दोनों कैप्टन को एग्री करवा के वो टाइम वहाँ से बचा सकते हैं। भाई हमेशा खुद लेट आओ, फिर हमारी क्रिकेट में बात मैंने लेट का नहीं कहा, बारिश हो गई है आपको अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस। हाँ वो फॉग हो गई है, यार असल में नहीं पता है क्या वो प्रॉब्लम क्या है वो वो आप हमारे ओवर्स कम कर देते नहीं मैं बात हम वो नहीं, उससे बड़ा नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड छोटी है, अब एक टीम में लेफ्टी है, दोनों के लिए दोनों टीम अब नहीं दोनों टीमों में लेफ्टी है, एक टीम में लेफ्टी है, अब वो एक साइड छोटी है, वो 10 ओवर उसके तो मजे हो गए। अब वो बॉलिंग टीम में सोचिए कि यार मैंने इधर से ऑफ स्पिनर लगाना था या इधर से लेगी लगाना था, वो तो फंस जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स होते हैं जो आपको छोटे एंड और बड़े एंड से देखना हमारे साथ टीम हुआ था वो 280 वाले मैच। गलत हुआ ना, तो ये चीजें क्रिकेट आप का कह रहे थे ठीक है। नहीं एकदम यही हुआ था ना। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर दूसरा एंड होता तो ये बचा लेते। और अंपायर्स बता रहे थे, यस अंपायर्स बता रहे थे कि वो ग्राउंड से कोई मील दूर गए हैं छिके। अच्छा इस पे एक कट ऑफ टाइम जो है ना वो हम ऑब्वियसली उसके ऊपर डिस्कस करके एक फाइनल बता देंगे ग्रुप के अंदर, उसके हिसाब से चलेंगे। यस आसिम भाई अभी मेरे ख्याल से यस यस इंशाल्लाह अभी इस वीकेंड से स्टार्ट है, हम वापस भेजेंगे। एक चीज एग्रीड है, सारी टीमें मान रही हैं 9:15 टॉस है 9:30 9:15 में देखिए मैं आपको मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप 9:15 देंगे ना कट ऑफ टाइम तो आपका मैच जो है वो 9:45 से पहले शुरू नहीं होगा। बस आपको देखिए आपने 9:15 पे आपने फॉरन से टॉस टाइम है भाई, यस दैट इज़ माई पॉइंट, इट शुड बी यस आपको यस यस दैट इज़ माई पॉइंट। यार आप 22 के लिए आप कह रहे हो कि 9:15 बजे 8 बजे 8:30 बजे पहुंचे भाई वो। फॉर एग्जाम्पल मैं तो फिर भी रिलैक्स कर रहा था कि बहुत स्कोर की टीमें आ रही कुछ हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है। वाली बात इंटरनेशनल में तो आधे घंटे का मैच होता है, मैच टीमों पे डिपेंड है, चाहे साथ ही आगे स्टार्ट कर देंगे इसका क्या भाई आप किसी भी क्रिकेट में। इस 9 बजे 10 मिनट चले आ रहे थे। और आजाद में एक पॉइंट और 9:11 नहीं होगा, फिर 9:10 होगा फिर। एक पॉइंट और, एक टीम लेट आती है टास्क बॉर्ड समझ में आ गई, और टास्क बॉर्ड के बाद 9:30 बजे भी वो टीम नहीं आई, एक 8 बजे की आगे बैठी हुई है, दूसरी टीम अब 9:30 10 बजे आ रही है, तो वो जो टीम पहले आई है उसको क्या बेनिफिट हो होगा? गया यार, हर 5 मिनट का एक और डिडक्ट हो गई। ये दूसरी टीम क्योंकि जो लेट आई है उसके और काटे जाएंगे, और दूसरी जो टीम ये हो चुका है, ये मैच का मैं टीम का नाम ही लूंगा रेस कोर्स। एक टीम आ गई, दूसरी टीम आई, छूट गया और हम तो सो रहे हैं। ये हमारे साथ हुआ है, कल ही हुआ है ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नाम ना ले टीम का, तो वो आई टीम आई 5-6 ओवर उसने कहा कोई क्या हमारे ओवर काटने बताइए हमने उनके ओवर काटे, मैच हुआ, दूसरी टीम के ओवर नहीं कटे, वो भी जीत। अच्छा इसमें सिर्फ मैं ये हम कटेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई, पहला मैच अगर बारिश हुई है तो पहले ओवर मैच के ओवर हमें कटेंगे, तीसरे मैच से नहीं कटेंगे। जो टाइम है ना ब्रैकेट वो दोनों मैचेस का है। लेकिन यहाँ पर जुमा भाई जो बात करें वो ये कह रहे हैं कि जो टीम लेट आ रही है सिर्फ उसके ओवर कटे। उसी को बताइए, हाँ लेकिन टीम तो टाइम पर आ गई है, उसके ओवर नहीं कटेंगे। जो टीम टाइम पर आ गई है अगर जुमा साहब वो डॉक्यूमेंट आपको पूरी फाइनल कर देगी, जो गलत काम कर रही है, जो लेट आ रही है वो क्रिटिसाइज होगी। उसको बताएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें जो ट्रैफिक जैम था, ये था वो था, वो हमारा मसला ही नहीं है। वो खुद
खुदाना पासा रोड पे फ्रंट खोल दिए उन्होंने, सारा कुछ कर दिया। ये हमारा लेकिन इस पे एट टाइम्स लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आई थिंक विद इन द ग्राउंड फील्ड पर आपस में मुशावरे से अंपायर्स के साथ चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि वो सबसे बेस्ट वे है। जो आपने रूल्स बनाए हैं वो अप्लाई करेंगे, बट अगर दो कैप्टन्स आपस में किसी चीज़ पे एग्री करते हैं जो कि अंपायर्स उसको अलाउ कर देते हैं, तो आई थिंक वो पॉसिबल ही नहीं। नहीं कैप्टन के हाथ में नहीं ना, एक मैनेजमेंट एक डिसीजन लिया हुआ है, ये रूल है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती कि मौके पे आके दूसरे का यार बंदे का नाम निकाल करवा लो यार, कैप्टन भी कहती है दूसरे ने। नहीं या और वो रूल्स के अगेंस्ट उसमें हमारी कंसेंट की बात नहीं होती। आप मेरा इस पर ना एक पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप सबकी बात सेकंड करता हूँ। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, वो टीम के हम नहीं खेल रहे, वॉक ओवर दे दें। आप फिर बताएं कि आप क्या कहेंगे। वो कह रही है हम नहीं खेल रहे, हम जा रहे हैं, आप वॉक ओवर दे दें। नहीं जुमा भाई वॉक ओवर भी दे दिया। सही है। इमरान भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना? नहीं मैं बिल्कुल आपस में डिसाइड कर सकते हैं ना, एम्पायर वहाँ पे गोल कैप्टन गोल नहीं है, जो रूल है ये ऐसा हुआ है टिशू पकड़िएगा जरा ये। टॉस के ऊपर भी जो रूल है वही इम्प्लीमेंट होगा। दोनों कैप्टन अगर कह दे नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वो अलाउड ही नहीं। आज में नहीं, वो फिर दूसरा कैप्टन खेला ना यार, सबूत क्यों दूसरा ऑप्शन मिलता नहीं, बस और बात ये दूसरे कैप्टन से भी ऐसे रिक्वेस्ट ना करें, दूसरे कैप्टन उसको प्रेशर में ना डालें। असल मसला ये है कि जब मैच होगा तो आपको ये चेहरे तो नज़र ही नहीं आएंगे, चेहरे डिफरेंट होंगे, आप किसी और को सामने कर देंगे, वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट होती है। बट मैं पर्सनली आई ऑलवेज से कि यार गो विद इन द रूल्स, जो आपने रूल्स डिफाइन कर दिए हैं उसके साथ खेलें। एंड वी होप के ना हो, बट इट्स वेरी इजी कि क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया जाए मैनेजमेंट पर, अंपायर्स पर। इट्स द मैं कहता हूँ सबसे आसान तरीका ये कि हम मेरा बंदा नहीं आया, मेरा बंदा नहीं आया, आप इसको अलाउ करते हैं। 6 ओवर के बाद वो बंदा आ गया, अब ये जा रहा है वो आ गया। अब देखिए ये इसका मैं ये भी बता दूं एक चीज, ये इस बात में आता है कि नॉमिनेशन दे दी है ना, वो खत्म हो गई, मतलब में लगी है। अब आप कैप्टन से बोले यार वो गलती से मैंने दे दिया, बंदा चेंज हो गया, सॉरी, इसका क्यों एक्सेप्शन नहीं है? आपके पास पेपर था, आप उस टाइम पे दे, मतलब उसका फिक्स पोजीशन पे होता है ना, मतलब आपको क्या है, मतलब पहले अगर सबका रिकॉर्ड करे सामने हमें फायर बोले कि दूसरे कैप्टन से मुझे ऐसा कुछ नहीं, हम मैच के लिए जो नॉमिनेशन आपने दे दी ना वो आपने खुद दी है ना यार। तो इसलिए टाइम पे आए ताकि आपको सुकून हो, सारा कुछ हो, दैट इज द रीजन। अब वो जब बड़ा टीम में चीजें होती हैं कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए कैप्टन के ऊपर आया। आई थिंक आगे मूव करते हैं यार, ड्रॉज वगैरह कराते हैं, ये चीज़ें कुछ क्लैरिफाई कर देंगे। आई थिंक मोस्टली सारी चीज़ें सेम है, सारे वही कॉर्पोरेट के लोग हैं, वही क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो आप, वही सब कुछ है। और इसमें कुछ चीज़ें जो पता ही हमने चीज देखी है, ये डिसीजन एम्पायर ने दे दिया, चाहे वो सही है गलत, उसकी रिस्पेक्ट करना हमें हमारी जरूरत है भाई। को मतलब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो अगर आप एम्पायर की इज्जत नहीं करेंगे, आपका प्लेयर एम्पायर की इज्जत नहीं करेगा, हमने उसके ऊपर 2 ब्लैक पॉइंट कर, और 2 ब्लैक पॉइंट का मतलब है कि 2 मैच बैठेगा, 2 मैच बैठेगा, उस मैच के बाद इसमें
लेकिन उसके ऊपर ये नहीं होगा कि नहीं यार देखिए तो मेरा मेन प्लेयर है, ये हो गया वो हो गया, वो तो उसने मजाक में ऐसा किया था सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं, एक चीज़ हो गई है तो वो हो गई। और जस्ट टू ऐड, ये चीज़ हमने अपने कॉर्पोरेट T20 ब्लास्ट में इम्प्लीमेंट भी की है। और जो सबसे इनिशियल इंसिडेंट था वो मेरी ही टीम से था। अंपायर के साथ एक आर्गूमेंट हो गया एंड वी रिस्पेक्टेड दैट और वी मेड हिम सिट आउटसाइड, और उसके अलावा उसने आके अपॉलॉजी भी की। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, ठीक है। कोई किसी के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, बट जब व्हेन यू आर प्लेइंग, एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो सबसे ऊपर है और वो उसको आई थिंक प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो ड्रॉस पर आ जाते हैं आई थिंक। अपना रनर्स किसके आई थिंक इसमें एज इन एस अच्छा रीजन मैच के दरमियान हो तो रनर अलाउड है, लेकिन अगर पहले से ही वो कैरी करके आ रहा है तो फिर तो नहीं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। आई थिंक वो लबीसा क्या नाम है, जिशान भाई, ये हसन है, वो जिशान है ना। तो आई थिंक वो उनको PCL भी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। ही हैज़ बीन अलाउड क्योंकि बिकॉज ही हैज़ अ बैक इंजरी, और वो आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर थे, बट ही कम्स एंड बैट। तो दैट हैज़ बीन वन रीज़न कि जिसकी वजह से उनको अलाउ किया हुआ है कि यार वो कर सकते हैं, और उनका मेडिकल रीज़न है। ऐसा कोई है इशू तो सारे कैप्टन Yes, 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 तो अभी आप वो बात कर yes. यहाँ पे जो है ना आपको पता होगा ठीक है, एक एंड्रू का प्लेयर है और आई थिंक इसमें जो चीज़ हो सकती है ना, आप बिल्कुल ऐड करें। बात मैं आपको बता दूं, जिस बंदे की कमर में दर्द है ना, वो उसको आपने अलाउ कर दिया हुआ है, खेले अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है तो ठीक है, लेकिन ये है कि वो जिस दिन उसने अगर बॉलिंग की ना उसके बाद उसको यस 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 वो बॉलिंग नहीं करते। यस एग्जैक्टली। करते ना, मैं कहता हूँ कि अगर उसने बॉल कर दिया तो उसके बाद किसी मैच में उसको रनर आप यस 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 एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। देखिए, रनर अलाउ ही इसलिए है। यस हुसाम, शाम भाई वो जिसको रनर चाहिए वो बॉलिंग तो नहीं करता हाँ? और जी अपना इरफान बट सिंपल है ना। उनको क्या हुआ है उनकी बॉलिंग नहीं करो तो टिप्पे में आती है खुदा के मैं बोल चुका हूँ ठीक है। ये दोनों भाई अलाउड हो गया, इनके एक एक प्लेयर का नाम डाल दीजिएगा, वो बॉलिंग नहीं कर सकते। अच्छा यार, दो पूल्स बनाने लगे हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स बनेंगे, क्रॉस ग्रुप मैचेस होंगे। एक बेसिकली जो टेबल आपको शोर होगा एक ही ग्रुप शोर होगा, और पूल्स जो होंगे वो बेसिकली टीम्स जो हैं वो अपोजिट खेल रही होंगी, जस्ट टू ऐड अ लिटिल फ्लेवर और जस्ट टू मेक श्योर कि बैलेंस टीम्स बने। तो हमने जो ऑब्वियसली अभी हमारी शॉर्ट लिस्ट से टीम्स हैं, जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग जो सबूर भाई ने शुरू में बात की थी, एक दो टीम्स हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू प्ले, बट उनके कुछ ऑब्वियसली कंसर्न्स इश्यूज चल रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से उनको डिसीजन फॉर इंस्टेंस लेट भी आता है, तो वी माइट ऐड इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, और वो हम उसको देख लेंगे किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। बट वो ऑब्वियसली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जो भी उसका होगा, एंड पीपल विल लेट यू नो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमने इस तरीके बेसिकली ये 4 डिफरेंट पेयर्स बना लिए हैं, 3 डिफरेंट पेयर्स बना लिए हैं, हर एक के अंदर 4 हैं, और उसका क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। एक जो ग्रुप है उसमें बेसिकली जो डे लीग की 2 फाइनलिस्ट टीम थी कॉर्पोरेट T20 ब्लास्ट की, आई थिंक दैट वाज मिज़ान एंड पैप्सी, तो वो हैं इसमें, और PCL में से जैसे EGI एंड ज़मीन, तो ये 4 टीमें हैं। तो इनमें से 2 टीमें एक ग्रुप में जाएंगी, 2 टीमें एक ग्रुप में जाएंगी, तो इवेंचुअली ग्रुप बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से फिर जो द अदर टीम्स दोज हु हैव परफॉर्म्ड वेल, जिसमें फातिमा, AJR और एक दो और नाम है उसमें, ऑब्वियसली दोज हु हैव बीन परफॉर्मिंग वेल, वो एक ग्रुप है, और फिर एक तीसरा ग्रुप आया था। इससे करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो ग्रुप्स हैं वो बैलेंस रहें, ताकि नॉकआउट्स मज़े के हों, उसमें थोड़ी सी आपको फाइटिंग मिले, और एट द सेम टाइम जो कुछ टीम्स उनका कंपेटिटिव लेवल वो नहीं है, उनके पास भी चांस हो कि दे कैन क्वालिफाई। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, और हम कोई भी रैंडम उठा लेते हैं। एक ग्रुप, ये 4 इसमें टीमें हैं, और आपके उसामा जी, द फर्स्ट नेम वुड बी इन पूल ए,
ग्रुप ए, द सेकंड वुड बी इन ग्रुप बी, और ग्रुप ए जो है वो 6 टीमें ग्रुप बी की 6 टीमें से खेलेंगे, जस्ट टू बी क्लियर। क्रॉस ग्रुप मैचेस होंगे। नहीं आप उसामा से भी उठवाते हैं एंड पर। उसामा नहीं सबका वोट है कि पहला उसामा उठा ले। चल ले भाई, बिस्मिल्लाह कर, खोल के नाम पढ़ दे। तो ग्रुप ए की फर्स्ट टीम लॉफ्टी जोंग, बस ये साइड पे रखो जी, आप ये पकड़ो और आगे लेके जाओ। शान से स्टार्ट कर लो, पीछे हो जाओ जरा, वीडियो में आ जाओ। ये पुल भी है नेस पार्क। खटक साहब से, इमरान खटक, इमरान खटक। लबीसा, फूले, ग्रुप ए। जस्ट सो एवरीवन नोस के ग्रुप ए की जो टीमें हैं वो आपस में नहीं खेलेंगी, क्रॉस खेलेंगे। लास्ट उठवा लो आप, ये राशिद भाई से उठवा लो, इनको भी शौक है। अलग अलग है, 2 उधर भी है, 2 कौन सी? MCB फंड्स, पुल बी। अच्छा यार, नेक्स्ट है, और ये जो टॉप 4 टीम्स हैं उनका है। तो स्टार्ट विद आसिम भाई। लेट्स सी आसिम भाई अपना नाम उठाते हैं या पुले? जमीन, पुले। और दूसरी जुमा भाई से उठवा लो, उमर भट्टी से उठवा लो। आ जाए उमर भट्टी साहब। भट्टी साहब जो ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में भी छाए हुए हैं। पेप्सी, पुल बी। तो पेप्सी और ज़मीन विल प्ले इन द लीग। नेक्स्ट मिज़ान, मिज़ान ग्रुप ए में आया जी। और एक मैं बताता हूँ, बिलाल भाई से उठवा लो। जोंग 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 जोंग, ये आ गई, EGI है, EGI है। तो जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि EGI इधर तो डिवाइड हो गया, क्रॉस मैच है। अच्छा ये लास्ट है, पहले जाके दिल भाई से उठवा लो। यहाँ पे वो मैंने वो डिवाइड मिक्स करके डाले, नीचे नहीं किया भाई, वो मैंने एंड पे भेजी हैं पर्चियाँ। आपका फातिमा से नहीं होता। कौन रहता है? लबीसा कौन? हाँ हाँ, इमरान भाई, इमरान भाई, इमरान भाई। इसमें भी सारी तगड़ी टीमें हैं। ए जी लो, अपनी पर्चियाँ उठा ली हैं इन्होंने बी में। एक इनसे उठवा लो, फिर एक हसन भाई से उठवा लो। ये इधर इधर इधर, फ्रीजलैंड, फ्रीजलैंड, ये भाई। चले भाई, बिस्मिल्लाह करें, अपना ही नाम। ओए क्यों रमडी, वो हसन भाई से ए में लास्ट है। फ्रीजलैंड, एंग्रो फ्रीजलैंड। तो बेसिकली जो ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जोंग, लबीसा, ज़मीन, मिज़ान, फातिमा, क्योर MD, ये ग्रुप ए हैं और ये आपस में नहीं खेलेंगे। तो दूसरे ग्रुप में है जी नेस्पाक, MCB फंड्स, पेप्सी, EGI, AJR एंड एंग्रो फ्रीजलैंड। जी वो सब कुछ कर देंगे।
आई थिंक मैं अगर इसको वैसे देखूं तो क्यों नहीं आई थिंक बहुत नहीं अगर ग्रुप्स देखा जाए तो नहीं काफ़ी बैलेंस्ड हैं, दोनों ग्रुप्स बैलेंस्ड हैं। यार ये ग्रुप भी ठीक है, हम आपस में खेल लेते हैं, अपनी भी खेल आप भाई आपस में खेलेंगे ग्रुप भी। हाँ आप ये अलग आपस में ठीक है आपस में खेल जी समूह में कुछ ऐड करना है यार, ये इसमें रितिया में वो खड़ी यस रितिया यहाँ पर है। क्या 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 नहीं रितिया कहीं पे भी नहीं है, रितिया इधर ही है। रितिया ने किधर जाना है, और रितिया बीमार है थोड़ी सी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी बड़ी मेरे ख्याल से आई डोंट एग्री टू दैट। उसकी एक मेजर रीज़न जो है ना वो इफ़ यू आस्क मी मेरा इस पे 2-3 दफ़ा एक आर्गूमेंट हुआ है, और वो यही हुआ है कि यार मैनेजमेंट की टीम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैनेजमेंट की नहीं होनी चाहिए तो स्पॉन्सर की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो दोनों का है फिर। तो मेरा ख्याल से इतना ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आई पर्सनली हैव प्लेड नहीं आई थिंक वो ठीक है, हर एक का अपना अपना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको उसके लिए ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। एग्जैक्टली नहीं मैं इस पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ। आई थिंक ये शान कहना आसान है। अगर कोई एक टूर्नामेंट करवा रहा है तो दो रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर टूर्नामेंट कोई करवा रहा है 2 रीज़न्स हैं। वन कि वो खेलना चाहता है और वो करवाना चाहता है, द अदर रीज़न इज़ कि वो बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिज़नेस तो कर नहीं रहे, और ये बड़ा क्लियर है। अगर कभी स्टैट्स खोल के दिखाएं तो आई थिंक तीसरा टूर्नामेंट करा रहे हैं, और उसमें अगर आप मेजर इन्वेस्टमेंट देखें तो हमेशा वो क्रिकले की रितिया की होती है, एट टाइम स्पॉन्सर से भी ज़्यादा होती है। और HYF जो आप बार बार आ जाता है तो वो भी एक तरह से मैनेजमेंट को कंपेंसेट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल ना खेलने की रीज़न हैज़ बीन सबूर भाई, ठीक है। तो मैं नहीं खेल रहा सिर्फ उनकी वजह से, बिकॉज बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि वाई यू डूइंग इट। तो मैंने कहा यार मुझे देखो, मैं तो लोगों को क्रिकेट देना चाहता हूँ और वो मैं दे रहा हूँ, और नो वन कैन स्टॉप मी। वो जो मैंने करना है वो मैं करूँगा। तो मैं कॉर्पोरेट आपके लिए आपको शौक है, एंड दैट इज़ वाई, एंड यू हैव गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म कि वेयर वी स्टार्टेड। तो इफ़ समवन क्वेश्चंस यू तो आई एम ओके, ठीक है। मेरे लिए कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट मेरी पर्सनल थॉट ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। उसकी रीज़न ये है कि एक और जो चीज़ है, जब तक मैं उस टूर्नामेंट का पार्ट ही नहीं होगा मैं उसके इश्यूज़ को समझूंगा ही नहीं, कभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। एंड यू विल सी जब आप टूर्नामेंट्स खेलेंगे और उसमें मैनेजमेंट की टीम नहीं होगी ना, तो वो कहेंगे यार ठीक है, सर दर्द क्या लेनी है, हमें कौन सा कुछ मिलना है, हमने कौन सी ट्रॉफी, बहुत सारी चीज़ें। इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ना। इंटरेस्ट आपका तब रहेगा जब आपका एटलीस्ट उसके अंदर कुछ हो। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि यहाँ पर इवन कि मैनेजमेंट अगर खेलिए तो दे आर पेइंग एंड देन प्लेइंग, ठीक है। जैसे हम जी मैंने आई थिंक सबूर भाई इसको बेहतर हाईलाइट कर सकते हैं। सबूर भाई, मैंने आपको इसका आंसर कर दिया कि रितिया इज़ नॉट प्लेइंग कि भाई मैं कोई मैनेजमेंट हूँ तो मैं नहीं खेलना चाहता। आई एम नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ सबूर भाई। तो क्यों? बिकॉज उनके लिए था, और उनके एक एज अ गुडविल, वरना और कोई मसला नहीं है। रितिया यार देखिए, इसमें ना बहुत अरसे से एक इशू चल रहा होता है कि जहाँ पे जो है ना मैनेजमेंट की टीम अनबायस होकर भी जीत जाती है ना, तो सामने वाली टीम को एक वो दिमाग में आती है कि यार ये एम्पायरों ने सपोर्ट किया है, ये किया है, वो किया है। तो वो उस चीज़ को ना, अजान का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि यार जब सारी एफर्ट भी हम करें, सब कुछ करें, और हम ही नहीं खेलने दिया जाए, हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं, हम पैसे भी जेब से लगा रहे हैं,
टीम भी हमारी काम कर रही है और हमारी टीम ही नहीं है, तो फिर हम क्यों ये सारी एफर्ट करें? तो इसका जवाब तो भाई जितनी भी टीमें हैं उनको देना चाहिए ना, मैं तो नहीं दे सकता इस पर। बट येस, मेरा अजान से ये पॉइंट था कि देखें अभी हमने देखा है कि ये चीज़ काफ़ी अरसे से एक उठी हुई है उस पर। अदील, पता है हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो सही है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इसमें अजान को भी और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये बहुत अच्छा है कि इसको निकालते हैं। देखिए आप जीत के भी अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे, हाँ, पॉइंट ये है, अजान की पॉइंट ये है। जीत भी एंजॉय कर रहे हैं, जीत भी इसलिए तो फिर उसका फायदा क्या है जब आपको बाकी लोग कुछ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। इससे सामने टू अजान एंड सुहेब एज वेल। एक चीज ऐड कर दूं, वो अभी हम सीनियर खेल रहे हैं, हम 100 खेले हैं, वो बंदे का नाम कहीं से भी उस बंदे का नाम है जिसने इनिशिएटिव पहली दफा लिया था। इमरान सोहेल, यस, जिसने वो भाई दिए बात कर। लेकिन मेरे ख्याल से ये सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट इज माय पॉइंट। टूर्नामेंट्स नहीं होंगे थे, आप you'll see it within times कि आपको पता चलेगा टूर्नामेंट कराने में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन होती है, एंड व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ये बात सही कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। हम 100 खेल रहे हैं, ठीक है, 100 में वी प्लेड एंड वी वन, ठीक है। अब उसमें हम ऐसे भी तो मसला था, फाइनल के अंदर कैसे भाई फायरिंग कर रहे थे, साथ सलीर भाई थे। अब इससे बेहतर क्या बाइज उठा के लेकर आते हैं? सो लेट्स डू वन थिंग, हमने ये तो टूर्नामेंट में अब कर लिया है, ठीक है ना? ये बट्टा सट्टा, मैं इस पे भी मैं आपको एक बात कह देता हूँ। मैंने 6 सीज़न, 5 से 6 सीज़न, 5 to 6 सीज़न मैंने PCL के खेले हैं, ठीक है। और मुझे जब हम फाइनल जीते हैं, मैंने उसमें भी PCL की, ज़ुहैब की, सलमान की, सबकी तारीफ़ की है। तो मेरा इसमें बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है एक, ठीक है। मैं तो खेल रहा था, और मैं जब खेल रहा था तो उस वक्त मेरा पहला एडिशन था सबूर भाई के साथ, एंड दिस इज़ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो, दिस इज़ वट आई इवन डिस्कस विद सलमान एंड ज़ुहैब एज वेल, कि भाई आप हमारा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मैं आपका टूर्नामेंट, आई वॉन्ट यू टू कम, कि आप मेरा टूर्नामेंट खेलें। मैंने उस वक्त उनको ऑफर किया था कि आएँ यार इसमें खेलें, अगर आपके कोई पर्सनल प्रीवियस कोई ग्रजेस रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं, दे वॉन्ट कम इन, ठीक है, आई विल बी द मिडल पर्सन। बट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ इश्यूज़ ऐसे हुए, और मेरा एक बड़ा सिंपल है, कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो ये था कि यार मैं 5 से 6 सीज़न आपको मैंने अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है, बट वो आपने यू डिसाइडेड कि यू डोंट वांट मी टू बी पार्ट ऑफ इट विदाउट इवन आस्किंग मी, विदाउट इवन, मतलब कि आपने यू डिसाइडेड इट। नहीं, ज़ुहैब से मेरा मसला नहीं है, ज़ुहैब इज़ नहीं, ज़ुहैब इज़ लाइक अ ब्रदर, वो हमेशा है, और मेरी कोई ना लड़ाई है उससे, ना कोई बहस है, कभी भी नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि नदीम अकमल खेल रहा है, सलमान खेल रहा है, ज़ुहैब वांटेड टू प्ले एज वेल विद मोहसिन डार, जो पंजाब खेल रही है हमारी 100 लीग, बट वो ओबियसली उनकी कुछ मैचिंग नहीं हो सकी, तो एवरीवन इज़ मोर देन वेलकम। बट मैं आपको बात जो करने का मकसद है ना, वो ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपस में देखें, हमारी जो ना ये कॉर्पोरेट सेक्टर का जो हमारा समझे कि एक मकसद है, एक फैमिली है हमारी, जी, तो प्यार मोहब्बत होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, मज़ा लेना चाहिए सबको। हम मज़ा नहीं लेते, हम ना क्रिकेट को टेंशन बना लेते हैं। यस जो इनका है ना खेलने का, खेल मज़े के लिए है। तो ये जो होता है ना क्लबनाइजर आपस में, मैं ज़ाती तौर पर पहले जो क्रिकेट देखता था, अभी भी सबूर भाई से भी कई दफ़ा बात की, आपसे बात हुई, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, दिल में जो बातें ना वो खत्म करनी चाहिए, चाहे वो Yes. नहीं, मेरे दिल में किसी के लिए भी कुछ नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर। करने दे, लास्ट बात करने दे यार, करने कर देते। क्या मेरा ख्याल है कि सबको अगर क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है तो सारे कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होना चाहिए। अगर एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो तो उसके साथ पैरेलल एक ही होना चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए। ना अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल रही है, ना अच्छी कवरेज मिल रही है। एक वक्त में 2 टूर्नामेंट हो, ये स्टॉप करें, फिर अगले 2 टूर्नामेंट करा
बात है जो तो ये सारे क्यों हैं एग्री करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट कहती है इधर खेलना दे, जब टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा होगा तो कहाँ खेलेंगे? है ना, क्वालिटी क्रिकेट आएगी ना। आई थिंक मैं इसमें ना एक चीज़ बड़ी ह्यूमन नेचर है, बहुत सारी चीज़ें जो हम दिल में रख लेते हैं, यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ कर कुछ अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्कस कर लें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम बाहर जाके करेंगे। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें जो टाइम लेंगी और वो खुद ठीक हो जाएंगी। और उसमें मैंने ये चीज़ हाईलाइट की कि जब मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट कराया था, मैंने तब कहा था आई वांट ज़मीन टू प्ले, क्योंकि मैं तो पहले PCL खेल रहा था, मैंने और क्या रिप्रेजेंटेशन देनी थी। और आई वॉज नॉट द वन के जो मेरे ख्याल से मैं तब भी कहता था कि इट वॉज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टूर्नामेंट्स, हमें मज़ा आया हमेशा, ठीक है। तो आई एम हैप्पी कि ज़मीन हैज़ द मोमेंट नदीम अकमल रीच्ड आउट टू मी, मैंने कहा यार देयर इज़ नो क्वेश्चन, कम एंड प्ले, आई विल बी मोर देन हैप्पी। Let me tell you, for us it is not business. We put money from our own pocket. Believe you me, क्योंकि जो सिचुएशन है उसको स्पॉन्सर की वो इतनी आसान नहीं है कि वो भी अप्रूवल इतना आसान नहीं है। तो जब हमने हमारे लिए भी यार एक सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बात आराम से ठीक कर रहा है। और नहीं बट पॉइंट ये है कि यार ये अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, और वो जो है ना एक टाइम था जब हो रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है डिटोरिएशन की तरफ जा रही है, कॉस्ट बढ़ गई है, सारी चीज़ों का एग्रीमेंट है। आई थिंक ये पॉइंट जो है एक ग्रुप में भी डाले जा सकते हैं। वी हैव गॉट आवर बूथ, और कितनी टीमों के मैचेस हो सकते हैं एग्रीमेंट, वो भी बता दें यार। वो डिपेंड करता है किट्स के ऊपर, सीधी सी बात है। अभी किट्स ऑब्वियसली जो नॉमिनेशंस आई हैं, क्योंकि कोई भी वेंडर एक टीम की किटें तो नहीं बनाएगा ना। यस, मोस्ट लाइकली होंगे, विल ट्राई के एटलीस्ट मतलब 4 से 6 टीमें तो एंगेज हों। सही है, तो उसमें भी आप ये करेंगे थोड़ा सा पहले से बता सबको हमें किटों की अपडेट आ जाए तो हम बता देंगे इंशाल्लाह। मोस्ट लाइकली होंगे मैचेस होंगे, बिकॉज वी हैव वेन्यूज़, हमने मैचेस करवाने हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अगर हम नहीं करवाएंगे तो मोस्ट लाइकली मैचेस विल टेक प्लेस इंशाल्लाह। तो मैंने इसलिए बता दिया कि 4 से 8 टीमें एंगेज होंगी, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहें। और वो टीमें एंगेज होंगी जिनकी नॉमिनेशंस आ गई हुई है, जिनकी नॉमिनेशंस नहीं आई उनका मैच नहीं होगा, कि जिनके अभी तक आई नहीं हमारे पास। थैंक यू सो मच यार। इसके अलावा किसी ने कोई चीज़ तो नहीं ऐड करनी? सबूर भाई चले गए, कुछ कहना तो नहीं, ऐड तो नहीं करना? तो यार आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि आप लोगों ने डिनर एंजॉय किया होगा। सबूर भाई का शुक्रिया सबको स्टेक्स खिलाने का, और इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन द फील्ड इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।